لندن میں مسلم لیگ نون کی قیادت کی بیٹھک، قومی امور پر مشاورت، وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد محمد نواز شریف سے ملاقات، اہم رہنماؤں کی بھی شرکت، سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور، آئین شکن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے مختلف تجاویز پر مشاورت۔ حتمی فیصلوں کے لیے اجلاس آج پھر ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں آئین شکن عناصر کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق نمٹنے پر اتفاق۔ آج کے اجلاس میں عوام کو بحران سے نکالنے کے لیے حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی۔ تمام فیصلوں کا اعلان اتحادی جماعتوں کی تائید اور حمایت سے ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ Of Pakistan, recalling the resolution of 6th August 2019, adopted unanimously by Parliament of Pakistan, and subsequent resolutions rejecting India's illegal, unilateral, reckless and coercive actions aimed at altering the internationally recognized disputed status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Deeply alarmed at the situation in IIOJK arising out of the continued Indian occupation in violation of international law and UN Security Council resolutions, expressing grave concern over the series of illegal measures that the Indian occupation forces have been taking to change the demographic composition of the occupied territories in stark violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention and the relevant resolutions of the UN Security Council. Denouncing the latest attempt at demographic engineering in IIOJK through a so-called Delimitation Commission constituted in March 2020 in the occupied territory aimed at artificially altering the electoral strength of the Muslim majority. Noting that the Commission's recommendations have been rejected by a cross-section of political parties in IIOJK, reaffirming Pakistan's complete support and solidarity with the Kashmiri people, rejects categorically the report that the so-called Delimitation Commission that seeks to convert the Muslim majority of IIOJK into a minority and further marginalize, disenfranchise, disempower the Kashmiri population of IIOJK and advance the political and electoral objectives of the BJP. Expresses grave concern that through the delimitation exercise, India is making an attempt to further its illegal actions of 5th August 2019 and subsequent measures, all of which have been categorically rejected by the people of Kashmir and the people of Pakistan. He recalls and reaffirms that Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute and a long-standing item on the agenda of the UN Security Council, declares that no facade elections based on a sham delimitation exercise can substitute the legitimacy and indispensability of a free and impartial plebiscite held under the auspices of the United Nations to enable the Kashmiri people to exercise their right to self-determination in accordance with the relevant UNSC resolution. We demand that India honors and fulfills its obligations under international law, UNSC resolutions, and the 4th Geneva Convention to refrain from bringing about any illegal demographic changes in the occupied territory, urges the Indian government to forthwith end its oppression and widespread violation of human rights and international humanitarian law in IIOJK and enable the Kashmiri people to exercise their inalienable right to self-determination as enshrined in the relevant UNSC resolutions. Calls upon the international community to ensure accountability of India's grave and persistent violations of human rights and war crimes in IIOJK, and to urge India, the occupying power, to immediately halt and reverse any unilateral and all illegal actions in IIOJK and to fulfill its obligations under the relevant UNSC resolution. Reiterates the unflinching commitment and solidarity of Pakistan and the Pakistani people with our Kashmiri brothers and sisters, and reaffirms that Pakistan will continue to extend all possible support in their just struggle for freedom and self-determination.
and requests the government to continue to expose and counter the Indian moves before the international community to highlight and forcefully project the Kashmir cause at all bilateral, multilateral fora, including the United Nations and the OIC. I request for this resolution to be passed by the House. Mr. Ramesh Kumar. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کی. وزیر خارجہ بننے کے بعد پہلا اقدام مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہی بات کرنا تھا. بھارت نے 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کی آبادکاری کا سلسلہ شروع کیا اور بھارت وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی غیر قانونی کوششیں کر رہا ہے. پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر فورم پر ان کا ساتھ دیں گے اور بھارتی بربریت اور ظلم و ستم کو ہر فورم پر اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ کمل. یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی اور مختلف امور پر مشاورت کی. مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزراء مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، خواجہ محمد آصف، سعد رفیق اور ایاز صادق بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اجلاس میں آئین شکن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے مختلف تجاویز پر مشاورت ہوئی. شرکاء نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. محمد نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر محمد شہباز شریف کو مبارکباد دی. اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد محمد نواز شریف کی زیر صدارت حتمی فیصلوں کے لیے آج پھر اجلاس ہوگا. اجلاس میں عوام کو بحران سے نکالنے کے لیے حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی. تمام فیصلوں کا اعلان اتحادی جماعتوں کی تائید اور حمایت سے ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پارٹی قیادت کے اہم مشاورتی اجلاس کی پہلی نشست میں موجودہ حکومت کے ورثے میں ملنے والے سنگین معاشی، آئینی اور انتظامی بحرانوں پر قائد محمد نواز شریف کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور موجودہ معاشی حقائق سے آگاہ کیا گیا. جو پاکستان مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور جس کے اندر پاکستان کی اقتصادی اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت معاشی صورتحال ہے، جو ملک کے اندر ایک آئینی بحران آئین شکنوں نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ مشاورت ہوئی، اس کا پورا جائزہ لیا گیا اور انشاءاللہ جو دوسرا اجلاس ہوگا اس میں جو فائنل حکمت عملی ہوگی، لائے عمل ہوگا، اس کی منظوری دی جائے گی اور تمام فیصلے جو ہیں وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیے جائیں گے اور ان کے اعلانات بھی بہت جلد. حکومت پاکستان کی طرف سے افغانستان میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو دی جانے والی امداد کا حصہ بنتے ہوئے نیسلے پاکستان نے 60,000 لیٹر پانی متاثرین کے لیے عطیہ کیا ہے. نیسلے کے کارپوریٹ امور کے سربراہ وقار احمد اور جنرل مینیجر عبداللہ جاوید نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں یہ عطیہ پیش کیا. ملاقات میں نیسلے پاکستان کے سینئر نمائندوں نے افغانستان میں سیلاب زدگان کے لیے امدادی اشیاء بھجوانے پر وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی مشکل وقت میں نیسلے پاکستان کی طرف سے افغان عوام کے لیے فلاحی کام کی تعریف کی. عطیہ شدہ پانی سیلاب زدگان کو موذی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ معاشی حالات کی درستگی ہماری اولین ترجیح ہے. معیشت کی بہتری کے بعد آئندہ انتخابات کا فیصلہ کریں گے. جلد ہی آئین اور قانون کے مطابق تمام فیصلے کریں گے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مقدمات قائم کرنے کے باوجود ملک سے وفاداری قائم رکھی. عمران خان کی طرح رونا دھونا شروع نہیں کیا. معاشی حالات کی جو درستگی ہے وہ ہماری پہلی ترجیح ہے. وہ ہمیں جلد فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ مارکیٹس جو ہیں پاکستان میں وہ ذرا منفی اثرات ان میں بڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشی حالات جو ہے نا کچھ اسٹیبل ہو جائیں، اس کے بعد الیکشن کے فیصلے بھی ہم کر لیں گے. ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، ہمیں اس ملک کے ساتھ ہماری وفاداری اور اس کے ساتھ وابستگی، اس مٹی کے ساتھ جو محبت ہے وہ اقتدار کے ساتھ مشروط نہیں. وفاداری کا افراد سے نہیں ہوتی. افراد جو ہے وہ ڈسپینسبل ہے. افراد آج ہیں کل نہیں ہیں، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، لیکن وطن جو ہے، ریاست جو ہے اس کو دوام ہے، آئین کو دوام ہے، مفادات جو ہیں ریاست کے، میرے وطن کے، ان کو دوام ہے.
ان کے ساتھ وفا ہونی چاہیے۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملک و قوم کو مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی قیادت کی ضرورت ہے اور ان کی وطن واپسی کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف نے کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں، گرفتاریوں پر یقین نہیں رکھتا، عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ یہودی بیری شنیپس جیسے لوگ بھی ہیں جو جوئش کاؤنسل کے وہاں کے ہیں امریکہ کے، اس میں پوری لسٹ ہے ان انڈیویجولز کی، اس میں تقریباً 350 کمپنیوں کی لسٹ ہے جنہوں نے پیسہ دیا جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں، اور یہ فارا قانون کہتا ہے کہ کسی بھی حکومت کسی بھی ادارے کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو ایویڈنس۔ پہلی بار ہمارا اپوزیشن بینچز سے اٹھ کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھ رہے ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے سیاسی حریف رہ چکی ہیں، سیاسی مخالف رہ چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان جو سیاسی تاریخ ہے وہ اس ملک اور قوم کے سامنے ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے درمیان سیاسی اختلافات رہے ہیں وہ اس ملک کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی ہو یا بلوچستان بی این پی ہو، یہ کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ دونوں اتحادی ایک ہی حکومت کا حصہ ہوتے؟ ہمارے ساتھ ساتھ جیسے جناب ہمارا بگٹی صاحب جمہوری وطن پارٹی کا نمائندہ کرتے ہوئے، محسن داور صاحب نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ اور سابق قبائلی علاقوں کے نمائندہ کرتے ہوئے، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کیو کے کچھ نمائندے، سب مل کے یہ حکومت سنبھال رہے ہیں جناب اسپیکر۔ تو ہم نے کیوں یہ وزن اپنے کھنڈوں پہ لیا ہے؟ یہ صرف تب ہوتے ہیں، ایسے حالات صرف تب بنتے ہیں جب ملک اور قوم سیویئر کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جنگی حالات ہو تو پھر ایسے سیاسی حالات ہو سکتے ہیں، جنگ اور ایمرجنسی جیسے میدان ہو تو پھر سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف جو سیاسی اعتراضات ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے نیشنل انٹرسٹ کے سوچتے ہوئے اس قسم کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اور جو پاکستان کی تاریخ نے بہت مشکلات دیکھے ہیں، آج ہم ایک بہت ہی یونیک سچویشن میں ہیں، اس لیے ہر فرنٹ پہ کرائسس ہے۔ جہاں ہم دیکھیں ایک بحران ہے، اور جتنا ہی برا، جتنا ہی مشکل ہم ان بینچز پہ بیٹھ کے سمجھ رہے تھے کہ حالات پہنچ چکے تھے، جو وزیر اپنے دفتر سنبھال کے پہلے دن جو دیکھ رہے ہیں، جناب اسپیکر میں اس ہاؤس سے آپ سے ملک اور قوم کے سمجھانا چاہوں گا کہ حالات ہمارا اندازہ سے بھی برا تھا۔ The situation in Pakistan is at crisis point. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے پاکستان کی جمہوریت ہو، پاکستان کا آئین ہو، پاکستان کا جمہوری ادارے ہو، پاکستان کے سارے ادارے ہو، یہ تو ہم مان چکے ہیں، جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے جس انداز سے اور جس طریقے سے ہر ایک ادارہ کو ہمارا نیشنل اسمبلی سمیت کو متنازع بنایا گیا تھا، ایک شخص کے لیے، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے، وہ نقصان اپنی جگہ، مگر جاتے جاتے جو نقصان خان صاحب اور اس کی سابق حکومت ہمارے ان ادارے کے ساتھ، ہمارا جمہوریت کے ساتھ اور ہمارا آئین کے ساتھ کیے اور آج تک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جناب اسپیکر، جس طریقے سے ہمارا جمہوری ہتھیار، ہمارا جمہوری عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا، جمہوریت پہ حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب لوگ، سابق وزیر اعظم پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر، صدر پاکستان،
on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, और April 10th से लेके आज तक जो आइन शिकनी कर चुके हैं, जो आइन तोड़ रहे हैं, जो आइन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, ये नेशनल असेंबली, ये पार्लियामान कैसे इस किस्म के हमले को इग्नोर कर सकते हैं? जनाब स्पीकर, हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के हमारा तारीख में पढ़ा गया है। हम समझते हैं कि on the night of April 3rd, on the night of April 8th and 9th, and आज तक उस आइन पे हमले हो रहे हैं, or it is the position of the Pakistan People's Party that has been presented before our united government, and I today present before you the Speaker of the National Assembly, that this House must form a high-level parliamentary commission or committee to investigate the events leading up to April 3rd, post-April 3rd, of the night of April 9th and April 10th, और जो उसके बाद आज तक होता आ रहा है, और पंजाब में जो गेम हम देख रहे हैं। अगर मैं ये आपके सामने नहीं कह रहा हूं कि जुर्म ये हुआ है और जुर्म का सजा ये है और हुकूमत को फौरन इन जुर्म के मुताबिक केसेस लॉन्च करना चाहिए। मैं आपके सामने ये केस प्रेजेंट कर रहा हूं कि हमें इन हमले को सीरियसली लेते हुए एक कमीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन कौन इन गैर आईनी गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस थे। और जहां तक अप्रैल 3rd की इंसिडेंस है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला में साफ बता दिया कि गैर आईनी काम हुआ था, लेकिन आगे जाके जिस तरीके से उन कोर्ट्स के ऑर्डर्स पे अमल नहीं हो रहा था, और जो भी वो तसलसल था, जिस तरीके से इस साबिक हुकूमत ने इस मुकाबला से, जमहूरी मुकाबला से भागते हुए आइन और जमहूरियत पे हमला किया, जनाब स्पीकर, द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट अकाउंटेबिलिटी। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारा जमहूरियत का तरक्की हो, अगर हम चाहते हैं कि इस हाउस का इज्जत बहाल हो, तो we have to investigate. We have to investigate and come to the bottom of these events. And जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी appropriate action है, उस investigation के, in light of that investigation, we can then move forward on this front. इसलिए कि कोई action नहीं लिया गया, इसलिए कि ये संगीन हमला, ये आइन शिकनी इग्नोर किया गया, साबिक वजीर आजम समझता है कि वो कोई मुकद्दस गाय है, और मुकद्दस गाय बनकर मुल्क और कौम, मुल्क के कोने कोने में फिर रहा है, और ऐसे हमले कर रहे हैं जो ना, तो सियासत अपनी जगह, हमारा कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारा आइन के खिलाफ है, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमले हैं, हमारा मुआशी सूरत हाल से, इन किस्म के एक्शन से, इस किस्म के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से नुकसान ही पहुंचेगा। और ये क्यों समझता है कि वो मुकद्दस गाय है? वो इसलिए समझते हैं कि मुकद्दस गाय है कि आज तक इसी एक सिलेक्टेड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। आपने, हमने, हम सब ने ये इग्नोर किया कि 2018 के इलेक्शंस में मुल्क के बदतरीन धांधली के थ्रू, हमारा इदारे के हमले की वजह से एक हुकूमत बनाया गया, 4 साल पे इस मुल्क में मुसल्लत हुआ, मईशत को तबाह किया, खाजा सतह पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया, आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक, माशी हकूक पे हमला करते आए, सूबे के हकूक पे डाके मारते रहे, बिजली का बहरान पैदा हुआ जहां बिजली बहरान नहीं था, पानी का संगीन बहरान पैदा किया गया, और आज तक चोलिस्तान हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, वहां के अवाम प्यास की वजह से परेशान है। हमारा जो फूड सिक्योरिटी सिचुएशन है, जनाब स्पीकर, इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स से पहले ही मुश्किल लग रहे थे।
हमारा वीट का बहरान जियोपॉलिटिकल इवेंट से पहला पैदा हुआ था। आपका यूरिया और खाद का बहरान इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स से पहले हुए थे। आज जो आपका फूड सिक्योरिटी का पोजीशन है, वो ना सिर्फ उस पहले बहरान को हमने किसी तरीके से फिल करना है, मगर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होराइजन पे हमें नजर आ रहा है, जो यूक्रेन, रशिया और नेटो के दरमियान एक सिचुएशन पैदा हुआ है, उसकी वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान को, इस रीजन को, पूरी दुनिया को। वीट प्रोक्योरमेंट में, यूरिया, फर्टिलाइजर, DIP के प्रोक्योरमेंट में, जो सप्लाई चेन्स के इंटरप्शंस इस क्राइसिस की वजह से और इससे पहले कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से पाकिस्तान के लिए फूड और एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत संगीन मसला है जिसका मुकाबला होना है। और इन सारे के सारे हालात में हम उस वजीर आजम को इजाजत दे रहा है कि वो जो भी जी बात करे, वो जहां भी हमला करे, कोई इससे पूछने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले कदम यह होना चाहिए कि हमारा पार्लिमानी कमीशन अपना काम शुरू करे कि अप्रैल 3 से लेके आज तक जो आइन पे हमले हुए हैं, इस पे क्या कदम इस हाउस सजेस्ट कर रहे हैं और उस पे क्या कदम उठाया जाएगा। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वही शख्स जो अकाउंटेबिलिटी, करप्शन कर रहा 30 साल से, जनाब स्पीकर, 4 साल से नहीं, 30 साल से हमारा कान पक चुके हैं ये सुन के करप्शन, चोर। 4 साल हुकूमत पे रह के एक चोर को सजा नहीं दिलवा सका, खुद चोर निकले, खुद तारीख का सबसे बड़े चोर निकले। ये नया हुकूमत का हमारा तो वर्जन नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो करप्शन पिछले 4 साल में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में उसके मुकाबला नहीं कर सकता। जो हमने देखे कि वजीर आजम और खातून अव्वल के जो इर्द गिर्द लोग थे, वो 4 साल के अंदर अरबपति बन चुके हैं। जिस वजारत में अब देखे इरेगुलरिटीज है, करप्शन ही करप्शन है। कोई वजीर आजम से पूछे कि आपके और खातून अव्वल के जो दोस्त है, उनके वेल्थ में इतना इजाफा कैसे हुआ। कोई वजीर आजम से पूछे कि वही शख्स जो इस ओहदा संभालने से पहले अपना वही वजीर आजम का अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो 4 साल में इतना ज्यादा कैसे भरा, तो वो बैरूनी साजिश का बात करना शुरू करता है, वो अदालत पे हमला करता है, वो इदारे पे हमला करता है। कोई इस शख्स से पूछे कि 4 साल में आपने इस मुल्क की मईशत के साथ क्या खेल खेला है, आपने 4 साल में पाकिस्तान के अवाम के मुआशी हकूक पे किस किस्म के डाके डाले हैं। कोई इस शख्स से पूछे कि पाकिस्तान को आपने कैसे और क्यों इंटरनेशनल फोरम्स पे अपना जिद की वजह से, अपना अना की वजह से, आपका अपना सियासत की वजह से इतना नुकसान पहुंचाया है, तो वो जवाब में झूठ कहता है, जवाब में हमला हावर होता है। और हमला हावर किस पे? इस अदारा पे या किसी और अदारा पे। इस तसलसल को हमें रोकना पड़ेगा, इस कदम को हमें रोकना पड़ेगा, सियासी तरीके से अवाम को समझाना पड़ेगा और जमहूरी तरीके से जनाब स्पीकर इस हाउस को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अदालत को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सारे इदारे को अपने रोल प्ले करने पड़ेंगे ताकि हम आईनी रास्ते अपनाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में था तो हमारा ये पूरा कोशिश था कि हम अपोजिशन करें, सख्त तरीन अपोजिशन करें, मगर आईनी, जमहूरी और कानून के दायरे में रह के अपोजिशन करें। और हम अपने अपोजिशन के दोस्तों को भी समझाते रहे कि एक्सट्रीम पोजीशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती, एक्सट्रीम मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आप अपना एहतजाज भी करें, जमहूरी हमला भी करें, जमहूरी पार्लियामान में रह के इनके खिलाफ कदम उठाए और आप जीत सकते हैं। और ये जमहूरियत की कामयाबी था, ये आइन की कामयाबी था
ایک ایسا تاریخی پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا جس کے نتیجے میں آگے جا کے 100 دنوں کی دھرنے کے بجائے ادارے پہ فزیکل حملے کے بجائے ایک جمہوری طریقے اپنایا جاتا، اور نہ صرف سابق وزیر اعظم کے خلاف لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی وزیر اعظم آئے جو ناکام رہے، نا اہل رہے، اپنے عہدہ سنبھالے کے لائق نہ رہے، تو ایک جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ہاؤس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے۔ مگر خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا رہا ہے اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف؟ اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف خان صاحب ایک جھوٹ پہ مبنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے ملک و قوم کے سامنے دو آپشنز رکھ لیں کہ زبردستی فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو، یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جہاں وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے، اور جو بھی یہ اس کا اسٹریٹجی آج کا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا، اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا، اور شکر الحمدللہ ان کا یہ اسٹریٹجی ناکام رہا۔ ہمارا سارے کے سارے ادارے جو ماضی میں متنازع تھے، چاہے ہمارا اپنا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ان کے پرووکیشنز کے باوجود آئین اور قانون میں رہ کے اپنے کام کرتے رہے اور جمہوریت کا فتح تھا۔ تو آج بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے، ایسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرے، ایسے غیر ذمہ دارانہ حملے کرتے رہے تاکہ یا اصلاحات کے بغیر ہم الیکشنز کرے، یا وہ پرووک کرے، جمہوریت کو انڈرمائن کرے، جمہوری ادارے کو انڈرمائن کرے، اور فورس کرے کہ غیر جمہوری غیر آئینی قدم اٹھایا جائے۔ جناب اسپیکر، ہم سب کا یہ تسلسل اور ہمارا سب کا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام رہے۔ ہم سب کے مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اور پاکستان کو بچانے کے لیے میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں، ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہتے تھے کہ پہلے احتساب پہ انتخاب۔ ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے، ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے، جگہ 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 ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کریں گے۔ الیکٹورل ریفارمز کے دو پہلو ہے۔ سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز، آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے، جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارمز میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مزید جو اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سول سوسائٹی، فیفن اور بہت سے ایسے کمیونٹیز ہیں جس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں،
पाकिस्तान पब्लिक से हमें राय लेना पड़ेगा और वो सारे राय को कंसेंसस में सियासी जमातों के दरमियान कंसेंसस बना के अगेन फौरन वो इस्लाहात करना पड़ेगा ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो 2018 में इस मुल्क के साथ खेल खेला गया वो कभी भी फिर इस मुल्क के साथ ऐसा खेल ना खेला जाए। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, हम ऑलरेडी इस कंसेंसस पे हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, जिसमें तकरीबन 80-90% तक हम अमल कर चुके हैं, जो काम उस पर रह जाता है, चाहे वो ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन हो, चाहे वो जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स हो, और चाहे वो जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का कमज़ोर और सियासी निज़ाम है उस पर इस्लाहात ले आने की बात हो, वो कंसेंसस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बन चुका है। तो हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले हम अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो रहता है काम वो शुरू हो। जो हमने नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाना है वो शायद एक लंबा चौड़ा काम हो। जो यहाँ हमारा इत्तेहादी है शायद वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पे एग्री करने को तैयार है, मगर जनाब स्पीकर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या ना हो, एक मिनिमल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो होना चाहिए। एक मिनिमल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए ये सारे जमातों के लिए। और वो जमात और जमातें जो यहाँ नहीं बैठे हैं कि आप इस मुल्क में सियासत कैसा करना चाहते हो। क्या हम आईन और जमहूरियत पे चलेंगे? क्या हम इज़्ज़त के साथ एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात रखेंगे और इख्तलाफात रखते हुए हम आपस में एक दूसरे की राय शेयर करके, जहां हम डिसएग्री करते हैं हम डिसएग्री करते हैं, जहां हम एग्री कर सकते हैं कंसेंसस बना के एक मसाइल का हल निकाल सकते हैं, वो बेसिक जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें ना सिर्फ ये सारे जमातें मगर वो जमातें जो यहाँ नहीं हैं उनको भी हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रेमवर्क ऐसा प्रेजेंट किया जाए जिससे हम अपने सारे इदारे को एक ऐसा स्पेस दे सके कि वो नॉन पार्टिजान ए पॉलिटिकल जमहूरी आइन में रह के काम कर सके, चाहे वो हमारा अदलिया हो, चाहे वो हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो। जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत और मुआशरे में तेज़ी से बिगड़ते हुए इस हालात की वजह से एक पोलराइजेशन और डिवाइड जगह जगह नज़र आ रहा है। जनाब स्पीकर, COD अपनी जगह, COD 2 अपनी जगह, अगर हम एक बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे सारे सियासी जमातें अगले इलेक्शन से पहले अग्री नहीं होते हैं तो फिर मैं इस हाउस के सामने क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा अगला इलेक्शन खूनी इलेक्शन होगा। इसलिए जनाब स्पीकर, हम तो एक ज़माने में अनसिविलाइज्ड होते थे, इस किस्म के तरीके अपनाए नहीं थे, और तब तो ऐसे होता था कि जिस के पास ज्यादा ताकत था, जो लड़ सकता था, जो मार सकता था, वो जीत सकता। और ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री civilized nations adopted institutions, norms, rules, laws and constitutions ताकि लड़ने के बजाय हम अपने मसले इस किस्म के इदारे और मुख्तलिफ इदारे और तरीके से थ्रू हल करें। और अनफॉर्चुनेटली हम वही पोजीशन पे वापस जा रहे हैं जहां हमारे इदारे और इस मसले से निकलने के लिए कि जो तरीक़ेकार है, जो फॉरम्स है, उनका ना कोई इज्जत रहा है, ना कोई तरीक़ेकार रहा है। नो वन इज़ विलिंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और जब हम इधर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, जब हम जमहूरियत, इलेक्शंस और जमहूरी तरीके पे यकीन और एतमाद रखने के लिए तैयार नहीं है, तो रहता क्या है? रहता यह है कि आप भी बंदूक उठाएं, मैं भी बंदूक उठाऊं और देखते हैं कौन जीतते हैं कौन नहीं जीतता। ये हालात बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में, और ये एक वफाकी निज़ाम है हमारा, इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम। एंड अगर हमने सब इस मुल्क में रह के, इस सिस्टम में रह के, जी के आगे जाके इन सारे मुश्किलात का मुकाबला करना है, तो हम सबको, सियासी जमातों को आपस में, मीडिया को, अदालत, दूसरे जो हमारे इदारे हैं, हमें एक बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट को अपनाना पड़ेगा ताकि हम मिलके पाकिस्तान को संभाल सके और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सके।
जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में इजहार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात सियासी तारीख़ का हिस्सा हैं और माजी के सियासी मुखालिफिन आज मुल्क की बका के लिए हलीफ बन चुके हैं। मुश्किल हालात में अगर मुल्क हो तो सियासी जमातें ऐसे इक़दामात ही उठाया करती हैं। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान एक शख्स के लिए इदारों को मुतनाज़ा बना दिया गया। उन्होंने कहा कि चारों सूबों के मुल्की नुमाइंदों ने मुल्की मफाद के लिए इत्तेहाद किया। कि आईनी और कानूनी इलेक्शन में जो रुकावटें खड़ी की, जो हटदर्मी दिखाई, जो सीन आपकी वजह से क्रिएट हुआ, मैं और सलमान रफ़ीक हम भी बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर इस पर खुश नहीं हैं। ये सीन नहीं होना चाहिए था, लेकिन कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? कितनी देर हटदर्मी बर्दाश्त की जाएगी? आज अगर इस सूबे का काम तकरीबन रुका पड़ा है, हम तमाम तर कमिटमेंट्स के बावजूद, तमाम तर मेहनत के बावजूद, हम चाहते हैं कि रात से पहले लोगों को अद्वियात जो है अस्पतालों में फ्री मिलना शुरू हो जाएं। हम चाहते हैं कि लोगों के लिए जो आसानी हम कर सकते हैं वो फौरी तौर पे हम कर दें। आप पेट्रोल की कीमत को अनाउंस करके चले गए हैं, आपने उसके लिए एक टेडी पैसा जो है वो बैक एंड पे नहीं रखा। आप तमाशे करते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, ड्रामे करते हैं और इस ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि आपको शर्म भी नहीं आती। तो खुदारा इस मुल्क पर जो नहूसत आई है आपके झूठ और आपके बुहतान की वजह से, उस नहूसत को टलना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों का कोई कसूर नहीं है, इनको आगे चलना चाहिए। मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क को आगे जाने में जो रुकावट डालेगा, आइन कानून तारीख उसको माफ़ नहीं करेगी। आज पंजाब जो 12 करोड़ अवाम का सूबा है, आप उस सूबे के साथ मजाक कर रहे हैं। आपको बाद में याद आता है कि जनाब वो तो गलती हो गई थी, वो तो इस्तीफ़ा जो बुज़दार साहब का था वो तो जनाब गवर्नर को एड्रेस करना था। क्या आपको ये पता नहीं है कि चौधरी सरवर साहब जो आपके गवर्नर थे, उन्होंने बुला के आपसे तसल्ली शाफी कर ली थी और उस वक्त आपका ये क्लेम था कि हमने तो जनाब फिजिकली बुला के जो है इस्तीफ़े के बारे में पूछ लिया है, और अब आपको वो तमाशा याद आ गया। जो मर्जी आप कर लें, आप फारग हो चुके हैं और आप जो बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं, मुनहरफ अरकान, ज़मीर, लोटे, क्या आपको उस वक्त आपका ज़मीर नहीं जागता था जब आप और आपके चीफ मिनिस्टर बड़े अदब के साथ, बड़ी ढिठाई के साथ हमारे मुनहरफ अरकान के साथ मीटिंग्स किया करते थे? आप वो तस्वीरें जनाब अखबारों में शाया करते थे, उनको हेडलाइंस में चलाते थे। उस वक्त वो जब 5-6 अरकान मुनहरफ हुए थे, जब आपकी अखलाकियात कहाँ थी? आज आपके अरकान आपको छोड़ कर गए हैं। आपको इसलिए छोड़कर गए हैं कि गली मोहल्ले में आपकी बदतरीन महंगाई और नाकामी की वजह से उनको जिल्लत का सामना करना पड़ता था। वो इसलिए छोड़कर नहीं गए कि उनको कोई इक्तदार चाहिए था। इक्तदार में तो भाई वो पहले मौजूद थे, वजारतें तो उनके पास पहले से मौजूद थी। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि वजारतों को ठोकर मारकर जो लोग अपोजिशन में आकर खड़े हुए हैं, वो आपकी बदतरीन नलायकी, आपकी बदतमीजियां, आपकी ख्वाहिशात, जो आप चाहते थे कि लोग बदतमीजी का कल्चर अपनाएं, आप उसको स्नब करते थे कि जो बदतमीजी नहीं करता था। आप उसको जलील करते थे जो गाली देकर बात नहीं करता था। आप ड्रामे और तमाशे वालों को, जिनका आपकी 22 साल जदोजहद में कोई किरदार नहीं था, उनको पसंद फरमाते थे। आप उस शहबाज गिल को जो 2019 से पहले कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, आपकी पार्टी नहीं जानती थी ये कौन है, आपने उसको पूरी तहरीक इंसाफ का मामा बनाकर रखा हुआ है। आप ब्लू आइड बॉयज उसको बनाते हैं जो ज्यादा बदतमीज है, जो ज्यादा बड़ी गाली दे सकता है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। यहाँ पर रवायत, यहाँ पर बुर्दबारी, यहाँ पर तहम्मुल, यहाँ पर एक दूसरे का एहतराम, इसको पनपने दे। घर घर लड़ाई पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपने सरकार मदीना की बारगाह में करवाया, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए उसके ऊपर। कोई पर्चा करे ना करे, कोई गिरफ्तारी करे ना करे, याद रखें शेख रशीद साहब, आप भी और बाकी मास्टरमाइंड भी, कि उस जात के पास जब आपने पेश होना है तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। आप दुनिया और आखिरत में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का सब्र, जो उसने सब्र करके मामला अल्लाह पे छोड़ा था, वो सब्र आप पर पड़ेगा। इन कैंसर पेशेंट्स की जो अद्वियात आपने रोक के रखी, इनकी बद्दुआएं आप पर पड़ेंगी। जो सूबे के गरीब अवाम का निजाम आप रोक रहे हैं अपनी हटदर्मी की वजह से, ये बद्दुआएं, ये जिल्लतें, ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी और इंशाअल्लाह जिल्लत आपका मुकद्दर होगी और आप कभी अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर आगे बढ़ेंगे, हम शहबाज स्पीड से आगे बढ़ेंगे। मानते हैं कि खजाना खाली छोड़कर गए हैं, आप सिंगल पेनी छोड़कर नहीं गए। IMF से आप वो कुछ एग्रीमेंट कर गए हैं कि जिनको नहीं मानते तो पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं कि एक गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, हम नहीं मानते, और अगर उन पर अमल करते हैं तो अवाम पर महंगाई के बम गिरते हैं। आप जो खड्डे खोद कर गए हैं, अल्लाह की जात मदद करेगी। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कामयाब होंगे और अपने मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे।
देखिए बाजवा साहब, बड़ी क्लियर बात है, उनके ज़हन में जो साजिश मौजूद थी, जो उसको वो सेक्रेटरी असम्बली के ज़रिए उस साजिश को वो कराना चाहते थे, अल्लाह ने उनको उसमें नाकामी दी है। अब वो अपनी हिफत में ढा रहे हैं, हर सूरत बाय हुक एंड क्रुक वो चिमटे रहना चाहते हैं। आइन और कानून को ना मानने की एक सज़ा होती है, और मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह सोच डेवलप हो रही है कि शराफत से बर्दाश्त मत किया जाए। अब इन आइन शिकनों को वाकई बताया जाए कि आइन शिकने की सज़ा क्या होती है। इंशाल्लाह उल्फत मुगल साहब, इसका रास्ता निकलेगा और अन करीब निकलेगा, बड़ी जल्दी निकलेगा और बड़ा अच्छा निकलेगा। और वो आइन शिकन जो समझ रहे हैं कि शायद हम अपनी अना और हठधर्मी के खोल में खड़े रहेंगे, उनको अपनी हठधर्मी से बाहर आना पड़ेगा। और अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद दिन जो है वो इस रास्ते को मुतय्यन करेंगे। एक एक हम बैठे हुए हैं। मैं टोटली आपकी बात से एग्री करता हूं। सलमान रफीक साहब और मैं जो अद्वियात खरीद कर गए थे, 2 बरस इस हुकूमत ने उनसे काम लिया है। 3 साल में ये गवर्नमेंट सिर्फ 1 मरतबा प्रिक्योरमेंट करने में कामयाब हुई है, जो डेली हर साल प्रिक्योरमेंट होनी चाहिए थी। हम नया निज़ाम दोबारा अपना 2018 वाला बहाल कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह सेंट्रल प्रिक्योरमेंट करेंगे। हम इस वक्त जो है रिफॉर्म्स के फेस में नहीं आ सकते, क्योंकि अभी जो वक्त बाकी है वो ज़्यादा नहीं है। हम ऐसे शॉर्ट टर्म इकदाम करेंगे जो सलमान रफीक साहब को और मुझे कहा गया है, वो तमाम शॉर्ट टर्म इकदाम करेंगे जिससे आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसमें आसानी होगी। और हस्पतालों के MS के बारे में सलमान भाई आपको भी बता देते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि लोगों को फ़ौरन से पहले मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो जाएं। पंजाब को जानबूझकर सियासी बहरान की तरफ धकेला गया। मुल्क में नफरत का बीज बोने वाले खबरदार रहें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुशीर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हवाई अड्डों पर जदीद सहूलियात की फराहमी के इनकलाबी मंसूबे का आगाज करने जा रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौम से अपने खिताब में इस मंसूबे की तफसीलात बयान करेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने मुशीर बराए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा डेरिक शोले से स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत लाने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत और सेहत जैसे अहम शोबों में रवाबित में मज़ीद तेज़ी लाने का भी फैसला किया गया। मसूद खान ने कहा कि पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होंगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने पंजाब में इंसदाद डेंगू की मौसर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। लाहौर में होने वाले इजलास में इंसदाद डेंगू के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मानसून सीजन से कबल तमाम महकमों को नताइज देना होंगे और इस सिलसिले में सर्वेलेंस का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मयारी स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात का बर वक्त इंतजाम करके इंसदाद डेंगू के लिए मुतालिका टीम्स को मुतहर्रिक किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुतालिका महकमों की जिम्मेदारी है कि वज़ा करदा प्लान पर अमलदरामद को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इंसदाद डेंगू के हवाले से कारकर्दगी को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाए। बहावलपुर डिवीजन के सहराए चोलिस्तान में बारिशें न होने से खुश्क साली, पानी की किल्लत और शदीद गर्मी की वजह से कई छोटे बड़े जानवर हलाक हो गए हैं। तफसील बता रहे हैं बहावलपुर से मुख्तार अंजुम। बहावलपुर डिवीजन के सहराए चोलिस्तान में इस साल बारिशें न होने और खुश्क साली की वजह से पानी की शदीद किल्लत है। गर्मी में इजाफे और पानी की कम दस्तयाबी से जिला रहीम खान और बहावलपुर जिला के चोलिस्तानी इलाके टोबा सालमसर और कला बजनोट बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहां गर्मी और पानी ना मिलने से छोटे बड़े जानवर हलाक हो चुके हैं। हमने दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है
जिन इलाकों में पानी की वाटर सप्लाई लाइन नहीं है उन इलाकों में पानी भिजवाने के लिए हमारे 4 बाउजर्स हैं, वो हम फौरी तौर पे बाउजर्स के जरिए दूर दराज इलाकों में ऑन डिमांड पानी भिजवा रहे हैं। चोलिस्तान को सैराब करने वाली नहरों में पानी खत्म होने से इंसानों और जानवरों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। पानी की कमी से निपटने के लिए चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहाँ से चोलिस्तान के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी मुसलसल जारी है ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। 11 जगहों पे जो ज्यादा हिट हुई है, जिसमें ज्यादा इधर है आपके जज्बान में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो इक़दाम हम करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो हमारी पुरानी कमी कोताहियां हैं उसको हम धोने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर बहावलपुर के कमिश्नर रिटायर्ड कैप्टन जफर इकबाल और जिला इंतजामिया ने चोलिस्तान का दौरा करके पानी की फराहमी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नर्सिस के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर में नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को इंसानियत के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा में नर्सिस ने डॉक्टर्स की हमरा जान की परवाह न करते हुए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कोरोना की मुश्किल तरीन सूरत हाल में अपनी खानगी जिंदगी और बच्चों के लिए वक्त भी इंसानियत की खिदमात पर कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान की नर्सेस ने कोरोना के दौरान मतलूबा तिब्बी सहूलियात न होने के बावजूद मरीजों की जान बचाकर इंसानियत की खिदमत की। इनकी शानदार खिदमत तारीख का सुनहरी और काबिल फ़ख्र बाब हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी इदारे सेहत की तरफ से मिडवाइफ लीडर्स की दर्जाबंदी में 10 पाकिस्तानी ख़वातीन का सर फहरिस्त होना उनकी खिदमत का आलमी एतराफ़ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता ख़वातीन और मर्द हजरात को बेहतर सहूलियात और मुआवज़ों की अदायगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में नर्सेस के शोबे के हालात कार में बेहतरी, तालीम और तरबियत का मेयार मजीद बढ़ाने, मुआवज़ों को मुनासिब बनाने के लिए इस्लाहात करेंगे। ख़वातीन नर्सेस खासतौर पर मुआशरती नामुनासिब रवैयों का शिकार बनती हैं, जिसकी हौसला शिकनी और इस ज़मन में आगाही फैलाने की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि नर्सिंग एक मुकद्दस पेशा है। मौजूदा हुकूमत इस शोबे को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नर्सिंग के आलमी दिन पर वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अपने बयान में कहा कि शोबा सेहत में डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज और पैरामेडिक्स स्टाफ का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए नर्सेज का किरदार मिसाली रहा है। सेहत के शोबे की तरक्की के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला बांडीपुरा में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके सलंदर में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया, जिससे मकबूजा इलाके में गुज़िश्ता रात से शहीद होने वालों की तादाद 4 हो गई है। कश्मीरी हुर्रियत क़यादत, स्टूडेंट्स यूनियंस और दीगर तंजीमों ने फ़िस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से आला तालीम के हुसूल के लिए कश्मीरी तलबा के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी की भी शदीद मज़म्मत की है। मार्क, बरतानिया, न्यूजीलैंड, हत्ता कि हमारे हमसाया ममालिक इंडिया, आप किसी भी मुल्क का जायज़ा ले लें, उनकी लाज आप देख लें। वाइट कॉलर क्राइम में कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है कि जी आप तफ्तीश का मुकम्मल करें। साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो। वाइट कॉलर क्राइम शुरू होता है लाहौर से और इसका इख्तिताम जाके होता है शिकागो में। तो इसके लिए मतलब वक्त चाहिए। फिर इसमें हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के प्रोग्राम हमारे हैं, उनसे भी मदद आती है, मदद लेते हैं। वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बाहर के जो ममालिक हैं वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में जब तक आपका केस मजबूत ना हो, बादी नज़र में केस साबित ना हो, आपको कोई इतला फराहम नहीं करता। लेकिन अगर एक दफ़ा इतला आ जाती है तो फिर उसको दराज में रखना ये चेयरमैन नैब के इख्तियार से बाहर है। और चूँकि उसको दराज में नहीं रखा जाता, एहतसाब शुरू किया जाता है, तो फिर वो मुखालफत जो है वो होती है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इस वक्त तक नैब की कारकर्दगी को ग्लोबल लेवल पर भी तस्लीम किया गया है। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पर भी उन्होंने, बल्कि 1-2 ममालिक ने हमें कांटेक्ट किया कि जी आप हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको आप उनकी तरबियत नैब करें, ताकि हम भी अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम ला सकें जो ये फैक्टम ऑफ रिकवरी, जब उनको पता लगा कि इतनी ह्यूज रिकवरी इन्वॉल्व है। इसके अलावा मतलब कुछ असाब हैं जिनका ख्याल है कि जी नैब में तो सज़ाएँ नहीं होती। भाई नैब में क्या, आप कभी जेल जाके जेलों में जाके देखें ना कि ज़्यादा कैदी जो हैं वो नैब के हैं। सज़ाएँ होती हैं तो ये रिकवरी होती है ना।
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیب کی کارکردگی کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے. بھارت میں ریاست کرناٹک کے ضلع بیلگاوی میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسجد پر اپنا مذہبی جھنڈا لہرا دیا. پولیس کے مطابق ہندوؤں نے صبح مسجد کے مینار پر چڑھ کر جھنڈا لہرایا. صبح واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں کشیدگی پھیل گئی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا. پولیس نے ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے رہنماؤں کی میٹنگ کی اور جھنڈے کو ہٹایا. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ضلع کے سبھی حساس علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے نے قوم سے دوسری مرتبہ خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر نئی حکومت تشکیل دی جائے گی اور نئے وزیر اعظم کی تقرری کے ساتھ کابینہ کا بھی انتخاب کر لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلی حکومت میں راجاپاکسے خاندان سے کوئی نہیں ہوگا. ملک کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے صدر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تشدد میں ملوث نہ ہوں اور احتجاج کرنا بند کریں. بات کریں گے موسم کی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے. لاہور میں اس ہفتے پارہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی ظاہر کی گئی ہے. گرمی کی یہ شدت معمولات زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں معظم الدین سے موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. معظم الدین، آگاہ کیجیے گا کتنی شدت ہے گرمی کی؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج بھی شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے اور گرمی نے شہریوں کا جو جینا ہے وہ بڑا مشکل کر دیا ہے. لاہور شہر کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرارت 29 اور زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری ہونے کا امکان ہے. اس وقت لاہور شہر میں 40 ڈگری جو درجہ حرارت ہے وہ چکا ہے، جبکہ دوپہر 3 بجے تک یہ درجہ حرارت 43 تک جا سکتا ہے. تو یقیناً جو گرمی ہے اس سے جو لاہور شہر کے شہری ہیں وہ کافی زیادہ ستائے ہوئے ہیں. صبح کے اوقات میں جو بچے جو اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، جو لوگ دفاتر جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کافی زیادہ مشکلات ہیں اس گرمی کی جو بڑھتی صورتحال ہے اس کی وجہ سے. اور محکمہ موسمیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو گرمی کی یہ جو صورتحال ہے یہ اس ہفتے تک تو اسی طرح چلتی رہے گی اور اتوار تک اس میں مزید اضافے کا امید ظاہر کی جا رہی ہے. اور ان کو یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا کہ 45 ڈگری تک جو پارہ ہے وہ جا سکتا ہے. تو جو شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو مشکلات دیکھنے کو مل رہی ہیں. آج اس وقت میرے پیچھے میں اس میں نہر پہ موجود ہوں. لوگ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہر میں نہا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھا جا سکے. ماہرین صحت کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں. کوشش یہی کریں کہ غیر ضروری سفر یا غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. جی